Good morning, everyone. Today, today we'll discuss about tenses. So we'll continue our discussion on present tense, and we'll proceed further towards past tense. Okay. So let us begin the class with a song. So you can all sing alone on a muted mode. So let us sing. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. Oh, wonderful love. So high, you can't get over it. So deep, you can't get under it. So wide, you can't get around it. Oh, wonderful love. So let us revise what we have done in the previous lecture. So we discussed about simple present, present continuous tense, and present perfect tense. So do you remember what were the forms of these tenses? So in Hindi you can look at ता है, ती है, ते हैं, ता हूं. सो अगर हिंदी में आप सेंटेंस देखोगे, हिंदी में अगर वाक्य देखोगे, तो जो वाक्य है उसका अंत कैसे होता है? ता है, ती है, ते है, ता हूं. जैसे कि मैं स्कूल जाता हूं. ठीक है. वह वह नृत्य करती है. सो जो वाक्य के पीछे क्या आ रहा है? ता है, ती है. सो वी कैन आइडेंटिफाई विद दिस signature ता है, ती है, कि this is simple present, or we also call it present indefinite. Okay. So in English, if you convert your Hindi sentence in English, what you see, what form you see? You will see helping verb, do, does, and then you will see that first form of verb is used in present tense, present simple present tense. And if see, if your subject, अगर आपका कर्ता, if your subject is singular, एक वचन है, अगर आपका कर्ता एक वचन है, then what helping verb will come? Do you remember? I am asking you, do you remember? If your subject is singular, so which helping verb will come? Do आएगा कि does आएगा? Hello? Does आएगा. Yes. So if your subject is singular, so you will helping verb you will use does. And what about if in the sentence does is not coming? See, if in the sentence does is not coming, so verb में s या es लग जाता है. अगर does नहीं आता है sentence में, अगर subject singular हो, तो verb में s या es लग जाता है. जैसे राधा goes to school. Radha goes, go, go is the first form of verb, and go के साथ es और लग गया. Okay, GOES. राधा goes to school. सब्जेक्ट सिंगुलर था, तो वर्ब के साथ es लग गया इस एग्जाम्पल में. ओके. अब अगर हेल्पिंग वर्ब यूज करना है सिंगुलर सब्जेक्ट में, तो डज यूज करते हैं. ओके. कि शी डज नॉट गो टू स्कूल. शी डज नॉट गो. जब डज आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब डज यूज करोगे, तो वर्ब से ऐसे ये हट जाएगा. शी डज नॉट गो टू स्कूल. ओके. गोज नहीं लिखोगे तब. शी डज नॉट गो टू स्कूल. ओके. और अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो, तो क्या यूज करते हैं? डू यूज करते हैं, है ना. अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो, तो हेल्पिंग वर्ब हम सेंटेंस में डू यूज करते हैं. अब जैसे कि दे दे डू नॉट प्ले हॉकी. दे डू नॉट प्ले हॉकी. सो डू इज यूज है ना. दे बहुत सारे लोग हैं, सो डू विल यूज डू. और अगर हेल्पिंग वर्ब इज नॉट रिक्वायर्ड इन द सेंटेंस, सो व्हाट विल यू यूज? यू विल कैन यू सी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है अकेली, एस या ईएस नहीं आता उस केस में. ठीक है. जैसे कि एक बार पीपीटी में क्लिक कर दीजिए, वो दिख नहीं रही. ओके. सो यू आर नॉट एबल टू. ओके. सो सो इज इट विजिबल? नहीं. ओके. हाँ. ओके.
So, if your subject is plural, so and then what I was discussing, if your subject is plural, then you will use do as a helping verb, and with do, if do is not required, then you will use verb की first form. Whenever your subject is plural, always your SEIS will not come. Verb की first form ही लगती है. जैसे they do not play hockey. Okay, do not play hockey. ना तो do के साथ es आया, ना प्ले के साथ ऐसा आया. ठीक है, जब प्लूरल होता है तो हेल्पिंग वर्ब डू यूज करते हैं, और वर्ब में एस या ईएस नहीं लगता, वर्ब एज इट इज यूज हो जाता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. ओके ओके सो okay, so I think simple present or present indefinite is clear. We have revised it. For present continuous, if you remember, then what are the forms in Hindi? Raha hai, rahi hai, rahe hain, raha hoon. So all these are forms like मैं पढ़ने जा रहा हूँ. Okay, कि वे यहाँ आ रहे हैं. So all these are forms of present continuous. जब आप जिस टाइम आप बोल रहे हो उसी टाइम काम, जब जनरली ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस होते हैं ऐसे होते हैं कि जब आप बोल रहे हो तभी वो काम हो रहा होता है. तो सेम टाइम आप जब सेंटेंस फॉर्म करते हो तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फॉर्म, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में फॉर्म होता है. अब इंग्लिश में कैसी फॉर्म होती है? इज, एम, आर. ओके, हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में? इज, एम, आर. और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है और आईएनजी लग जाता है फर्स्ट फॉर्म में. ठीक है, जैसे कि राधा इज प्लेइंग फ्लूट. ओके, राधा इज प्लेइंग फ्लूट, तो राधा एक है, तो व्हाट हेल्पिंग वर्ब विल बी यूज्ड? इज. ओके, राधा इज प्ले, प्ले फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, उसके साथ आईएनजी लग जाएगा. शी इज प्लेइंग फुटबॉल. ओके, शी इज प्लेइंग, प्लेइंग, प्ले के साथ आईएनजी लग गया, फुटबॉल. ओके, सो ऐसे ही अगर आप आई यूज कर रहे हो तो एम लगता है. आई एम डूइंग माई वर्क. ओके, आई एम, आई के साथ एम लगता है. और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो तो आर लगता है. लाइक दे आर मेकिंग नॉइज, दे आर मेकिंग नॉइज. ओके, सो दे के साथ आर लगा, और मेक प्लस आई एन जी. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. सो लेट अस मूव फर्दर टू रिवाइज प्रेजेंट परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट से कैसी सेंस आती है? जैसे कोई काम आप प्रेजेंट में बता रहे हो कि ये काम हो चुका है, तो सेंटेंस के पीछे क्या क्या लगता है? चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं. ओके, सो जैसे कि मैं खाना खा चुका हूं, मैं स्कूल पहुंच चुका हूं, है ना? ऑल दीज आर फॉर्म्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट. एंड व्हाट अबाउट इन फॉर्मिंग इन हिंदी, इंग्लिश? सो यू विल यूज हैज एंड हैव. हैज कब यूज होता है? जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो. शी हैज डन हर वर्क, शी हैज. ओके, एक है सब्जेक्ट, एक है, एक वचन है, कर्ता एक वचन है, तो हम क्या यूज करते हैं वाक्य में? हैज. ठीक है, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम यूज करते हैं हैव. ओके, सो दे हैव डन देयर वर्क, दे हैव डन देयर वर्क, है ना? सो दे के साथ हैव आया. अब in present perfect you use third form of the verb like do, did, done. Okay, so do is the first form, did is second form, and done is third form. Done is your third form, so you will use done here. Okay, third form of the verb. So they have done, done is the third form. So you remember in present perfect that you will use third form and has and have as your helping verbs. Okay, so I think we are clear with all these tenses. So let us move forward towards our next tense, present perfect continuous. So what is the form of present perfect continuous? से रहा है, से रही है, से रहा हूं. Do you remember uh, I had discussed you what is the difference between present continuous and present perfect continuous? There is only one difference, that in present continuous कोई काम हो रहा है, आप सेम टाइम बता रहे हो, है ना? लेकिन present perfect continuous में क्या होता है? कोई काम पहले से शुरू हुआ है और आप अभी बता रहे हो पहले से शुरू हुआ है. जैसे मॉर्निंग से, है ना? 2 साल से, या फिर या फिर कल से, है ना? 8 बजे से.
So you are just saying कि this work that you are mentioning, at what time it has started. Okay, so you are just mentioning कि कब शुरू हुआ था. Like ये जो से रहा है ऐसे आता है कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, मैं सुबह से बोल रही हूँ, या फिर मैं सुबह से गाना गा रही हूँ. सो ऑल दीज आर फॉर्म ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. एंड व्हाट अबाउट इन इंग्लिश? इंग्लिश में क्या होता है? अगर इफ यू कन्वर्ट दी सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश, व्हाट हैपेंस? Your helping verb is has or have. Okay, and with has and have you use been. Okay, and first form of the verb plus ing. Okay, so how it is used, how we form the sentence, we'll see. Look at here, what is the structure of sentence. So first it comes in the sentence, क्या आता है? Subject आता है. Okay, पहले subject आता है. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यू यूज हैज बीन. ओके, जैसे यू हैव सीन, परफेक्ट में क्या था कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो बस हैज आता था. ओके, हैज. सो हियर हैज बीन. ओके, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. ओके, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाता है. और यू यूज सिंस फॉर. ओके, फॉर इंडिकेटिंग से, है ना, मॉर्निंग से. सो you want to indicate say, है ना, so you will use since and for. And whatever time that you are mentioning, morning, evening, whatever time you are mentioning, it comes in the sentence. So an object also can come in the sentence. Further, an object also can come if your subject is plural, or your subject is I or you. Okay, if your subject is plural or your subject is I or you, because I or you are just considered as plural forms of subject. So if subject is plural and is I and you, so you, what you use? Have. Okay, you don't use has, you use have been. Okay, and for verb you use verb की first form plus ing, and same since for indicating the time of say, and then your time comes. Okay, so this is the example for affirmative sentence. Now what happens in negative? There is only one difference. In negative what happens, that you use be, not. Okay, subject plus has not been, है ना, has not or have not been, plus same structure follows. Okay, verb की first form plus ing, since, for, or plus time. Okay, time will follow. Then what about interrogative? When you are forming questions, जब questions form करते हो तो कैसे sentence बनते हैं? आपने पहले भी देखा है कि टेंस में क्या होता है कि हमेशा वेन एवर यू आर यूजिंग इंटेरोगेटिव, सिंपल इंटेरोगेटिव, जिसमें कोई क्वेश्चन, जिसमें कोई जेन्युइन क्वेश्चन ही ना पूछा जाए जब तक, तब तक आप क्या, एक सिंपल क्वेश्चन है, मतलब कोई स्टेटमेंट, उसके आगे आप जब क्या लगा देते हो सीधा, तो सिंपल इंटेरोगेटिव में क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ जाता है. जैसे फर्स्ट यू विल यूज योर हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव, then your subject will come, then it will be followed by be, then your verb first form plus ing, then since, for, then your time follows. Okay, so it will be more clear when you will see the examples. So what about negative interrogative? Negative interrogative में क्या होता है कि subject के पहले helping verb for asking question, है ना, you have to ask a question, then you have to place your helping verb before. Okay, then your subject comes, then your negative word not. Okay, then your been. So has, have plus subject plus not plus been plus verb की first form ing or since, for, and followed by time. So the same structure follows. Okay, let us look at the example, will be more clear. मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, मैं सुबह से पढ़ रहा हूं. अगर इसी सेंटेंस को मैं लिखती मैं पढ़ रहा हूं, तो पढ़ रहा हूं मतलब वो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, है ना. लेकिन अगर मैंने फिर टाइम की सेंस जोड़ दी इस सेंटेंस में, टाइम की सेंस आ गई, सुबह से पढ़ रहा हूं, तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. अब इसका हाउ विल फॉर्म इंग्लिश आउट ऑफ दिस सेंटेंस? आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग. आई के साथ देखो हैव आता है ना, योर इफ योर सब्जेक्ट इज प्लूरल हैव आता है. आई हैव बीन फॉलोड बाय बीन, स्टडिंग, है ना, स्टडी इज वर्ब, so it will be ing will join it, studying since morning. So since is coming,
to indicate morning से. Okay, सुबह से, since morning. So I will tell you कि when since comes and when for comes. First, let us quickly run through these examples. वह घंटों से मेरा इंतजार नहीं कर रहा है. वह घंटों से, अगर ये सेंटेंस सिंपल होता वह मेरा इंतजार नहीं कर रहा है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता, लेकिन घंटों से आ गया तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन गया. ठीक है. ही हैज नॉट बीन वेटिंग फॉर मी फॉर आवर्स. ही इज सिंगुलर, सो वी आर यूजिंग हैज हियर. सो ही हैज नॉट बीन वेटिंग. वेट इज वर्ब, so ing is joining for me for hours. So for is used here. Okay, घंटों से. Okay, so next one let us see. इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ना, ये सेकंड वाला नेगेटिव सेंटेंस था, नहीं, हैज नॉट बीन. यू कैन सी इन द स्ट्रक्चर कि हैज के बाद नॉट आ गया. अब क्या आप 2 साल से दिल्ली में रह रहे हैं? यू आर आस्किंग क्वेश्चन है ना, दिस इज अ स्टेटमेंट. आप 2 साल से दिल्ली में रह रहे हैं एंड यू आर जस्ट प्लेसिंग क्या, है ना, क्या आप 2 साल दिल्ली में रह रहे हैं? हैव यू बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 2 years? तो यू के साथ हैव आता है. सी, यू के साथ हैव आता है. ओके, सो हैव यू बीन, जो हेल्पिंग वर्ब है आपका, वो आगे आ जाएगा. हैव यू बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 2 years? क्वेश्चन मार्क. ओके, फॉर 2 years, 2 साल से. ठीक है. अब नाउ व्हाट अबाउट नेगेटिव? okay, so it is not a negative interrogative, but it is a example of, next one is the example of in which question is asked. Okay, so let us look at this example. तुम 10 बजे से किसे ढूंढ रहे हो? अब इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है. ऐसा नहीं है कि एक सिंपल स्टेटमेंट नहीं है और फिर जस्ट क्या नहीं लगाया. इसमें क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है, तुम 10 बजे से किसे ढूंढ रहे हो, है ना, और टाइम का सेंस भी आ रहा है, तो ये क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. अब हु हैव, अब किससे, हु हैव यू बीन सर्चिंग फॉर? ओके, फॉर नहीं आएगा. अच्छा, सर्चिंग फॉर. ओके, फॉर विल कम. सिंस 2 o'clock, 10 बजे से. अब यहाँ पे जो फॉर आया है ये किस सेंस में आया है? आई विल टेल यू. हु हैव बीन सर्चिंग फॉर. सर्चिंग फॉर मतलब ढूंढने से मतलब है सर्चिंग फॉर, है ना. किसके लिए मतलब किसको ढूंढ रहे हो? सर्चिंग फॉर. ओके, हु हैव यू बीन सर्चिंग फॉर, कि आप किसे ढूंढ रहे हो. अगर आप सिंपल बोलो हु हैव यू बीन सर्चिंग फॉर, तो इसकी हिंदी क्या होगी? हु हैव यू बीन सर्चिंग फॉर. लेकिन आप कह रहे हो तुम 10 बजे से किसे ढूंढ रहे हो, तो हु हैव यू बीन सर्चिंग फॉर सिंस 10 o'clock. ओके, सो नेक्स्ट वन. वह एक हफ्ते से स्कूल क्यों नहीं आ रहा है? इसमें क्वेश्चन भी पूछ रहे हो आप और इसमें नेगेटिव सेंस भी आ रहा है, तो दिस इज नेगेटिव इंटेरोगेटिव. ओके, सो हाउ इट इज फॉर्म्ड इन इंग्लिश? व्हाई हैज ही, मतलब पहले आप क्वेश्चन, जिससे आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, जैसे क्यों. क्यों का इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश क्या होती है? व्हाई, है ना, क्यों. सो व्हाई हैज ही नॉट कमिंग टू स्कूल फॉर 1 week? वह एक हफ्ते से स्कूल क्यों नहीं आ रहा है? फॉर 1 week, है ना, एक हफ्ते से. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, then helping verb, then subject, then comes your negative word, then your verb plus ing, and then it follows by whatever object or the rest part of the sentence. Okay, so let us do some exercise. Let us do some exercise now. So first one, वह 2 घंटे से आपका इंतजार कर रहा है. वह 2 घंटे से, कैन यू फॉर्म इंग्लिश, कैन यू कन्वर्ट दी सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश? वह 2 घंटे से आपका इंतजार कर रहा है. ही हैज बीन वेटिंग फॉर यू. सिंस नहीं आएगा यहाँ पे. ओके, नाउ आई शुड टेल यू कि व्हेन यू विल यूज सिंस एंड व्हेन यू विल यूज फॉर. ओके, सिंस तब आता है जब जब आप टाइम को बताते हो कि एग्जैक्टली क्या टाइम है. जब टाइम को एग्जैक्टली बताते हो कि एग्जैक्टली, है ना. अब 2 घंटे तो कोई भी हो सकते हैं. ठीक है, सो 2 घंटे इज नॉट अ स्पेसिफिक टाइम, इट इज नॉट अ पर्टिकुलर टाइम, सो यू विल नॉट यूज सिंस हियर, यू विल यूज फॉर 2 hours. ओके, लेकिन when you will use since, जैसे since Monday, okay, और since 1947, you have seen many times. Since 1991, है ना, since 2012. okay, so if you are मतलब एक
पर्टिकुलर टाइम के बारे में बात कर रहे हो, देन यू विल यूज सिंस। और 2 hours और 3 hours, 2 days, है ना, for 2 days, तो ऐसे में for आता है। for 2 years, है ना, which 2 years, you are not specifying ना, so for 2 years, for 2 hours, for 2 days, or whatever. Okay, so we'll look at more closely how for and since are used. So further let us move further with our exercise. So वह 2 घंटे से आपका इंतजार कर रहा है। he has been waiting for you for 2 hours. okay, वह 10 मिनट से चाय पी रहा है। he has been taking tea for 10 minutes. For 10 minutes. yes. ओके, 10 मिनट्स है ना, 10 मिनट पिछले 10 मिनट से, बट इट इज नॉट स्पेसिफाइड, है ना। अगर मैं कहूं, अगर 8 बज रहे हैं और मैं कहूं कि 10 मिनट पहले, अगर मैं टाइम ही बता दूं सीधा, है ना, कि 7:50 से, तो मैं लिखूंगी सिंस 7:50। ओके, सो अगर ये परफेक्ट टाइम अगर बताऊं, तब सिंस यूज होगा, और वैसे फॉर यूज होता है। ओके, सो जब ड्यूरेशन ही जस्ट बताई जाए। ओके, so for 10 minutes he has been taking tea for 10 minutes. वह सुबह से खाना नहीं खा रहा है। he has not been eating खाना, food, है ना, he has not been eating food since morning. yes, since will come here. yes, since morning. okay, morning, evening, है ना, morning, evening and night, so these are times which are very specific, morning, evening, night, so we'll use since here. okay, राधा वर्ष 2016 से संगीत सीख रही है। Radha has been learning music since 2016. Yes, correct. Absolutely correct. Yes. क्या आप 5 वर्ष से इस विभाग में कार्य कर रहे हैं? क्या आप 5 वर्ष से इस विभाग में कार्य कर रहे हैं? यू के साथ हैव आता है ना। हैव यू बीन वर्किंग, हैव यू बीन वर्किंग in this department for 5 years? Yes, absolutely correct. Yes. Okay. क्या मास्टर जी विद्यार्थियों को आधे घंटे से पढ़ा रहे हैं? क्या मास्टर जी विद्यार्थियों को आधा घंटे से पढ़ा रहे हैं? Yes, correct. Has the teacher been teaching the students for half an hour? It is correct, absolutely correct. राहुल सोमवार से दफ्तर क्यों नहीं आ रहा है? राहुल सोमवार से दफ्तर क्यों नहीं आ रहा है? Okay, so why Rahul has not been coming to office since Monday? Since Monday is correct. Why Rahul has not been coming to office since Monday? It is correct, yes. वह 2 दिन से खाना क्यों नहीं खा रही है?
खा रही है शी बीन यस वाई हैज शी नॉट बीन से पहले नॉट आएगा ओके नॉट बीन ईटिंग फूड फॉर 2 days फॉर 2 days ओके 2 दिन से फॉर 2 days why has she not been eating food for 2 days okay क्या तुम 2 दिन से अपना गृह कार्य नहीं कर रहे हो क्या तुम 2 दिन से अपना गृह कार्य नहीं कर रहे हो हैव यू के साथ हैव आता है करेक्ट हैव यू नॉट बीन डूइंग योर होमवर्क फॉर 2 days यस करेक्ट एब्सोल्युटली करेक्ट वह कई दिनों से मुझे तंग कर रहा है तंग करना मतलब टीज ओके वह कई दिनों से मुझे तंग कर रहा है वह कई दिनों से मुझे तंग कर रहा है ही हैज बीन टीजिंग मी फॉर सेवरल डेज करेक्ट यस फॉर सेवरल डेज फॉर सेवरल डेज यस करेक्ट मैं 2 घंटे से कोई काम नहीं कर रही हूँ बीन से पहले नॉट आता है आई हैव बीन नॉट इज नॉट मेकिंग एनी सेंस आई हैव नॉट बीन डूइंग एनी वर्क फॉर 2 hours करेक्ट आई हैव नॉट आई के साथ हैव आता है ओके आई हैव नॉट बीन डूइंग एनी वर्क फॉर 2 hours तुम सुबह से खाना क्यों नहीं खा रहे हो हाँ वाई हैव यू नॉट बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग वाई हैव यू नॉट बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग okay so let us so we have done our exercise so let us do some more okay so first one क्या पिछली रात से वर्षा हो रही है क्या पिछली रात से वर्षा हो रही है क्या पिछली रात से वर्षा हो रही है हैज इट बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट हैज इट बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट पिछली रात से लास्ट नाइट नॉट येस्टरडेज नाइट कल रात से है ना कल कल अगर आता तो येस्टरडे नाइट लिखते ओके लास्ट नाइट इज करेक्ट कई दिनों से आकाश में पंछी नहीं उड़ रहे हैं कई दिनों से आकाश में पंछी नहीं उड़ रहे हैं birds have not been flying in the sky for several days yes it is absolutely correct yes इस लड़के को 1 घंटे से कौन सता रहा है लड़के को 1 घंटे से कौन सता रहा है
Who has been teasing this child for 1 hour is correct. Yes. क्या तुम पिछले 2 महीनों से रोज बाहर नहीं जा रहे हो? क्या तुम पिछले 2 महीनों से रोज बाहर नहीं जा रहे हो? Okay. Have you not been going outside every day for last 2 months? रोज की भी you have to मतलब you have to also use the English of रोज, है ना? ओके. सो क्या सोमवार से स्कूल खुल रहे हैं? क्या सोमवार से स्कूल खुल रहे हैं? सोमवार से, since Monday, yes. Have the schools been opening since Monday? It is correct, yes. तुम 2 दिन से वहां क्या कर रहे हो? हाँ. What have you been doing? What have you been doing there for 2 days? Yes, it is correct. तुम शाम से इतना क्यों रो रहे हो? तुम शाम से इतना क्यों रो रहे हो? Why are you weeping so much since evening? Oh, so why have you been weeping so much? Yes. Why have you been weeping or crying? Why have you been crying so much since evening? Okay. तुम 2 घंटे से इस मोबाइल में क्या देख रहे हो? तुम 2 घंटे से इस मोबाइल में क्या देख रहे हो? What have you been watching in this mobile for 2 hours? Is correct. Yes. देख रहे हो, हाँ. Just watching. Okay. उसे कल से लगातार बुखार आ रहा है. उसे कल से लगातार बुखार आ रहा है. Yes, he has been suffering from fever since yesterday. Yes, it is correct. हाँ. क्या राहुल 7 बजे से पतंग उड़ा रहा है? क्या राहुल 7 बजे से पतंग उड़ा रहा है? Has Rahul been flying kite since 7 o'clock? Has Rahul been flying kite since 7 o'clock? It is correct, yes. So now in this exercise, you have to put the right word. पूनम जी, आपको ज्वाइन में क्लिक करना है, मैं आपको रिमूव कर रहा हूँ एक बार. ठीक हो गया, हो गया, हो गया. ठीक. Okay, so you have to fill these
blanks with a correct word. So let us look at the first example. The earth dash round the sun. So it is an assertion, right? So this is present indefinite. So earth moves. So S आएगा. Okay. Earth moves round the sun. Move is verb और इसमें S लग जाएगा. Because this is present indefinite and our subject is singular. Okay. So I dash him only one letter up to now. अप टू नाउ है ना, इस सेंटेंस से ऐसी सेंस आ रही है कि मैंने भेज दिया है, चुका है टाइप है ना, ऐसी सेंस आ रही है. सो यू विल यूज आई हैव सेंट. आई हैव सेंट. ओके. सो नॉट मतलब सेंट अकेला सेंट नहीं आएगा, बट आई हैव सेंट हिम ओनली वन लेटर अप टू नाउ. अभी तक मैंने उसे एक पत्र भेजा है या भेज दिया है. अगर इफ यू आर सेइंग कि अभी तक मैंने उसे एक पत्र भेजा है, आई हैव सेंट हिम भेज दिया है, ऐसा सेंस आ रहा है. सेंट हिम ओनली वन लेटर अप टू नाउ. ओके. सो द सूप डैश गुड. द सूप tastes good. Yes, you are simply saying something about soup, so it is present indefinite. So taste, s आएगा, taste. Okay, TASTES. The baby dash all morning. ये कैसी बात हो रही है? हाँ, हैज बीन क्राइंग. ये हो रहा है कि जो बेबी है वो सुबह से रो रहा है ना. पूरी 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 सुबह निकल गई रोते हुए उसे, है ना. सो हैज बीन, द बेबी हैज बीन क्राइंग ऑल मॉर्निंग. आई डैश इंग्लिश फॉर 5 years. टाइम का सेंस आ रहा है. हाँ, आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 5 years. डोंट डिस्टर्ब मी, आई डैश माई होमवर्क. डोंट डिस्टर्ब मी आप अभी बोल रहे हो ना प्रेजेंट में. आई एम डूइंग. सो आई एम डूइंग माई होमवर्क. इट डैश सिंस अर्ली मॉर्निंग. सिंस अर्ली मॉर्निंग क्या आएगा? इट हैज बीन रेनिंग. यस, इट विल बी present perfect continuous. The headmaster dash to speak to you. The headmaster dash to speak to you. Is wanting. Wants is correct. Is wanting. See, if you remember, want or wanting, these are words with different meaning. Okay. सो वांट और वांटिंग का मीनिंग ही चेंज हो जाता है. ओके. वांट का मतलब होता है कोई कुछ चाहना, कुछ प्राप्त करने के लिए यू से कि आई वांट दिस, है ना. बट वांटिंग इज समथिंग डिफरेंट, यूज्ड इन अ डिफरेंट सेंस. लाइक if you are saying something like he is not so intelligent, है ना, he is deficient in intelligence, so you use wanting. So he is wanting in intelligence. He is wanting intelligence. So its meaning is different. So wanting is never a verb with ing. So if you remember, I have discussed with you that there are certain verbs where ing cannot come. If ing comes, then their meaning changes completely. So they don't now are of the same meaning. So you have to take care for that. Okay. So here what will come? Wants. Okay. The headmaster wants to speak to you. It is present indefinite or simple present. She dash worries about something. She dash worried about something. She looks worried about something. Yes, correct. या फिर शी इज लुकिंग. अगर आप प्रेजेंट में बोल रहे हो तो आई थिंक शी इज लुकिंग. व्हाट डू यू थिंक? लुक्स फिट्स बेस्ट और इज लुकिंग फिट्स बेस्ट? अगर इस सेंटेंस को अगर हम हिंदी में सोचें तो ये क्या होगा कि वह परेशान दिख रही है या फिर वह परेशान दिखती है. तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा? वह परेशान दिख रही है तो मतलब अब अभी अभी बोल रहे हो कि आप देख भी रहे हो और कह रहे हो कि वह परेशान दिख रही है ना. अगर आप ये कह रहे हो कि वह परेशान दिख रही है ऐसे ऐसे पॉइंट करके,
तो यू विल यूज शी इज लुकिंग. ओके, शी इज लुकिंग वरीड अबाउट समथिंग. आप प्रेजेंट में उसी टाइम बोल रहे हो जिस टाइम आप देख रहे हो और जिस टाइम वो परेशान दिख रही है ना. लेकिन अगर आप ऐसे कहो कि वह परेशान दिखती है, अगर आप लुक्स लुक्स यहाँ पे डालना, अगर आपको लगे कि लुक्स डालना है मुझे, तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा. शी लुक्स वरीड अबाउट समथिंग, इसका मतलब है कि वो कुछ ऐसी बात हो रही है कि वो हमेशा से दिखती है ना, कुछ मतलब वो दिखती है, कुछ हैबिट टाइप शो करता है कि वो दिखती रहती है, वो परेशान ही रहती है ऑलमोस्ट, है ना. तो शी लुक्स वरीड अबाउट समथिंग, वह कुछ परेशान दिखती है, परेशान सी दिखती है. ऐसा आप कब बोलते हो? जब वो बहुत बार देखा हो आपने और वो हमेशा परेशान ही दिख रही हो आपको, है ना. तो द मीनिंग चेंजेस कंप्लीटली. सो यू हैव टू टेक केयर इन व्हाट कंटेक्स्ट यू आर टॉकिंग. Okay, so next one, he dash here for the last 5 years. He has been working, yes. Time का sense आ रहा है. It is present perfect continuous. Yes, correct. So let us quickly do this exercise by identifying the tense. So we'll do it very quick. I am hoping to get a holiday soon. So what is this tense? I am hoping. I need I require a quick answer. I think in this exercise you should all participate. I am seeing only 4 or 5 people are participating. So I request all to participate. I am hoping to get a holiday soon. So what is it? Which tense it is? I am hoping. Which tense? Tense. I am asking about tense. It is present continuous tense. Okay. Present continuous tense. Okay. So you should all participate and you should all answer. Okay. So next one. We have heard a strange story. We have heard. What do you think? Which one it is? Present perfect. Yes, correct. Have आ रहा है और third form आ रही है. Here heard heard. So heard is third form and have is coming. So it is a present perfect tense. Fortune favors the brave. Fortune favors the brave. Favors. Can you quickly look which tense it is? Favors. कौन सी tense में आता है? Simple present में. Correct. Yes, it is simple present. Correct. Okay. Nice. More people are participating. My uncle is arriving tomorrow. My uncle is arriving tomorrow. Is arriving. Okay. What tense it is? It is present continuous. Correct. Correct. Yes. Present continuous. They have been playing since 4 o'clock. They have been playing since वो have been playing. Since भी आ रहा है इसमें. कौन सा tense है ये? Since आ रहा है इसमें. Present perfect continuous. Yes. Correct. When does the coffee house reopen? When does? What do you think? When does the coffee house reopen? So it is simple present. Yes. We eat to live. We eat to live. What do you think? Which tense it is? We eat to live. Simple. Correct. It is a simple present tense. Mohan is visiting his native hometown. Is visiting. What do you think? What is it? Is visiting. Present continuous. Correct. Yes. I have come to see you. I have come to see you. What do you think what it is? Have come. Come, came, come. Okay. Come, जो come verb है, its third form is come. Come, second form is came, and third form is come. So come, came, come. Third form is coming here. So have is also coming. Correct. Absolutely correct. Present perfect it is. Okay. So this paper appears twice weekly. Appears, you can see appears, है ना, एस आ रहा है. So it is present indefinite, है ना, या फिर simple present. Correct. Correct. I am thinking of going to Malaysia. I am thinking. I am thinking. See, present continuous. Correct. They have been building the bridge for several months. They have been building the bridge for several months. Have been building for several months. Can you look at the signatures? Have been, and for is also coming. Which tense it is? Present perfect continuous. Correct. Have you read Gulliver's Travels? Have you read? Have you read? है ना, read, read, read. है ना, read जो है वो थर्ड फॉर्म है वर्ब की. Have you read?
सो हैव आता है और थर्ड फॉर्म किस में आता है? प्रेजेंट परफेक्ट में. करेक्ट. हियर कम्स द बस. कम्स द बस. सो इट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर सिंपल प्रेजेंट. करेक्ट. ओके. सो आई गेट अप एवरी डे एट 5 o'clock. I get up every day at 5 o'clock. Which tense it is? Is it present perfect? Look it carefully. I get up. Have कहीं आ रहा है? Present perfect में तो have आता है. Has have आता है. Helping verb में इसमें कहीं नहीं है ना. I get up every day at 5 o'clock. So it is simple present. Okay. It is just showing a behavior. Just a habit. It is only simple present. Okay. So we are done with this exercise. So let us next discuss about the past tense. So in past tense, see, same as we have discussed in present. So we'll look at the different types of past: simple, past continuous, past perfect, and past perfect continuous. So I will quickly go through all these forms and what are the examples, and then we'll discuss them briefly. So in past simple, what is the signature in Hindi? हिंदी में कैसा what is the, आप कैसे पहचानोगे हिंदी में? जब था, थे, थी. जब सिंपली ऐसे आ जाए कि कुछ भी, कोई भी काम आप बता रहे हो कि कोई काम हुआ है ना, हुआ था, मतलब या फिर किया था, है ना, या फिर मैं गई थी. सो ऑल दीज आर सिंपल पास्ट. दिस ऑल इंडिकेट सिंपल पास्ट. और इसमें इंग्लिश में फॉर्म कैसी होती है इसकी? आप वर्ब में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हो, सेंटेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है. और अगर डिड आता है, अगर आप हेल्पिंग वर्ब डिड यूज करोगे तो देन यू विल नॉट यूज योर सेकंड फॉर्म, यू विल यूज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. सो लाइक वी कैन लुक एट दिस एग्जांपल. उसने एक पत्र लिखा. सो इट इज पास्ट सिंपल. ही रोट अ लेटर. So he wrote a letter. So wrote is what? Write, wrote, written. Wrote is second form of the verb. He wrote a letter. So second form of verb is coming here. Okay. So what about past continuous? Past continuous की क्या पहचान है? रहा था, रही थी, रहे थे. जैसे आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में देखा था, रहा है, रही है, रहे है ना. ऐसे पास्ट कंटिन्यूअस में क्या हो जाता है? रहा था, रही थी, रहे थे, है ना. तो एंड व्हाट अबाउट इन इंग्लिश? वहां पे आप यूज कर रहे थे इज एम आर. हेल्पिंग वर्ब क्या यूज हो रहा था? इज एम आर प्रेजेंट के लिए. लेकिन पास्ट के लिए क्या यूज होगा? वॉज वर. ओके. हेल्पिंग वर्ब पास्ट के लिए, हम पास्ट कंटिन्यूअस के लिए वॉज वर यूज करते हैं. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज यूज करते हैं, और प्लूरल है तो वर यूज करते हैं. ओके. और फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है. एग्जाम्पल देखते हैं. वह खेल रहा था. वह खेल रहा था. He was playing, है ना. सब्जेक्ट सिंगुलर है. He was playing. Okay. What? Let us look at past perfect. इसमें कैसा सेंस आता है? चुका था. जैसे अभी आप प्रेजेंटली बोल रहे हो चुका है, यह काम कर चुका है, मैं खाना खा चुकी हूं, है ना. आप प्रेजेंटली बोल रहे हो तो वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट. लेकिन पास्ट परफेक्ट में आप बोल रहे हो कि कोई काम हो चुका था, है ना. तो मैं स्कूल जा चुकी थी. मतलब आप पास्ट में भी ये बता रहे हो कि मतलब पास्ट में भी आप ये बता रहे हो कि ये काम हो गया था, पास्ट में जाके बता रहे हो, है ना. मैं स्कूल जा चुकी थी या फिर मैं खाना खा चुकी थी. और क्या डिफरेंस है प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट में? प्रेजेंट परफेक्ट में कह रहे हो कि मैं खाना खा चुकी हूं, मतलब आप अभी बता रहे हो कुछ कि मैं ये काम कर चुकी हूं. लेकिन पास्ट परफेक्ट में क्या है? मैं खाना खा चुकी थी. आप कोई पहला इंसिडेंट बता रहे हो कि पहला, आपने कोई पास्ट का इंसिडेंट निकाला कि इस टाइम क्या हुआ था. यू आर रिकॉलिंग दैट. सो मैं खाना खा चुकी थी. तो इस सेंस में पास्ट परफेक्ट यूज होता है. चुका था, चुकी थी, चुके थे. ठीक है. और इंग्लिश में कैसे? इंग्लिश में क्या फॉर्म होती है इसकी? हैड लग जाता है. इफ यू रिमेंबर, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता था? हैज हैव लगता था, है ना. हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैज और हैव यूज होता था, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती थी. इफ यू रिमेंबर, है ना, कि आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया है. लेकिन अगर आप इसी सेंटेंस को बोलो कि मैंने अपना काम कर लिया था, तो आई हैड डन माई वर्क, बस हैज हैव की जगह हैड आ जाता है. ओके. हैज हैव की जगह बस हैड आ जाता है. और थर्ड फॉर्म सिंपल एज प्रेजेंट परफेक्ट. ओके. थर्ड फॉर्म वैसे ही रहती है.
जैसे कि लेट अस लुक एट द एग्जांपल, वह खाना बना चुका था, बना चुका था। सो ही हैड, हैड है ना, हैज नहीं लिखोगे यहाँ पे, ही हैज नहीं लिखोगे क्योंकि चुका था। अब पास्ट में भी एक इंसिडेंट सुना रहे हो कि वह खाना खा चुका था उस टाइम। सो ही हैड कुक्ड फूड, बना चुका था, सॉरी, कुक्ड फूड। ओके, सो कुक्ड, कुक, कुक्ड, कुक्ड। ओके, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड हियर। सो व्हाट अबाउट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है? वो सेम जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या हो रहा था कि टाइम की पीछे से सेंस आ रही थी, है ना, कि मैं मंडे से काम कर रहा हूँ, या फिर मैं सुबह से खाना खा रही हूँ, इस टाइप से, है ना। लेकिन आप अभी बोल रहे हो वो बात कि मैं तब से ये काम कर रही हूँ। लेकिन पास्ट परफेक्ट में क्या होता है? मैं काम कर रहा था, इसमें फिर से आप कुछ इंसिडेंट सुना रहे हो, पास्ट इंसिडेंट सुना रहे हो कि मैं उस समय स्कूल जा रहा था, है ना। आप क्या कर रहे हो कि कोई पुरानी बात सुना रहे हो कि मैं उस समय स्कूल जा रहा था, मैं उस समय खाना खा रहा था, या राधा उस समय नृत्य कर रही थी। सो ऑल दीज आर व्हाट? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इट इज सेम एज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, बट व्हाट इज द डिफरेंस? इसमें आप कुछ पास्ट का इंसिडेंट, you are just explaining about a past incident, or it is about some past thing that you were doing, है ना। ओके, सो फॉर्म इन इंग्लिश में क्या होता है? इसकी फॉर्म वहां पे क्या था? हैज, हैव, बीन। अभी अभी हमने पढ़ा है ना, हैज, हैव, बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। तो डिफरेंस क्या आया? बस हेड आ गया यहाँ पे, हैज हैव की जगह हेड आ गया बस। ओके, और दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, वह कई साल से यहाँ आ रहा था, ही, ओके, यहाँ पे हेड आएगा, so there is a mistake here. He had been coming here for many years. Okay, so had आएगा यहाँ पे, रहा था। Okay, so can you quickly do this exercise? I did not, you have to identify the tense. I did not want to go to school. I did not want to go to school. So what, which tense it is? You have to identify between all of this. You can look at the forms. I did not want, did not want. हाँ, इट इज सिंपल पास्ट। डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है हमेशा, ठीक है। डिड जब यूज होता है सेंटेंस में, यू ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। आई डिड नॉट वांट टू गो टू स्कूल, इट इज ओनली सिंपल पास्ट। ओके, सो नेक्स्ट वन, आई हैड बीन टीचिंग हिम फॉर 2 years. I had been teaching him for 2 years. Had been teaching. What it is? Past perfect continuous. It is not perfect continuous. It is not, because see, time की sense आ रही है, for 2 years, 2 साल से. So it is past perfect continuous. Okay. So I had completed my work. I had completed. Can you quickly identify? Had completed कहां पे है? had के साथ थर्ड फॉर्म, complete, completed, completed. It is past perfect. Correct. It is past perfect. We were singing a song. We were singing. Were singing. What is it? Were singing. It is past continuous. Correct. Yes. So let us convert all these sentences into English. First one. राजू गणित पढ़ रहा था. राजू गणित पढ़ रहा था. Can you convert it into English? राजू गणित पढ़ रहा था. First you have to identify which tense it is. ये past continuous है ना? पढ़ रहा था, रहा था. This is past continuous. So राजू गणित पढ़ रहा था. What is the English? राजू was studying maths. Correct. राजू is subject is singular, so was आएगा. ठीक है? राजू was study में ing लग गया. राजू was studying maths. Okay. मैथ नहीं होता, मैथ्स. ओके, राजू वॉज स्टडिंग. रीडिंग होता है, ओके, जो गणित पढ़ रहा है ना. रीडिंग होता है लिटरल सेंस कि कोई जोर जोर से कुछ पढ़ रहा है. सॉरी, कोई जोर जोर से कुछ पढ़ रहा है. जैसे आई एम रीडिंग एन एसे, है ना. जब आप रीडिंग एन एसे बोलते हो तो आता है कि आप जोर जोर से कुछ पढ़ रहे हो, है ना. और पढ़ना क्या? जस्ट पढ़ना.
कि जस्ट आप अध्ययन कर रहे हो किसी भी विषय का, तो आप बोलते हो स्टडी। और जब रीडिंग बोलते हो तो उसका सेंस अलग आता है। रीडिंग मतलब जोर जोर से पढ़ना। ओके, सो जोर से मतलब जस्ट यू आर स्पीकिंग द वर्ड्स। ओके, सो यू विल यूज स्टडी हियर। राजू वाज स्टडिंग मैथ्स। ओके, जब भी आप सब्जेक्ट का किसी भी सब्जेक्ट का नाम लिखते हो तो हमेशा कैपिटल, ओके, मैथमेटिक्स, physics, all these subjects, I think I have to confirm, but what I know is they should be written in capitals. जैसे maths का M capital, I will confirm it and then tell you, but okay, so um, I will hold this for the time being, and I will confirm that what the subject names, they are, I think they are written in capital letters. Maths, physics, all these are for capital letters. Yes, वह खाना खा चुका था। खाना खा चुका था, what it is, चुका था, past perfect। he had eaten food, eat, ate, eaten। eat की तीन फॉर्म्स क्या होती हैं, वर्ब की तीन फॉर्म्स। eat, second form is ate, third form is eaten, so he had eaten food, correct, yes। उसने एक गाना गाया, उसने एक गाना गाया, सिंपली उसने एक गाना गाया। what do you think? जरूरी नहीं है था, थे, थी आए, बल्कि सिंपल पास्ट में ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं, उसमें आ का सेंस भी आता है, आ साउंड भी आता है। उसने एक गाना गाया, शी सैंग अ सॉन्ग। सिंपली यू विल यूज सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, शी सैंग अ सॉन्ग। सिंग, सैंग, संग। ओके, सेकंड फॉर्म इज यूज। शी सैंग अ सॉन्ग। मैं उसे एक साल से नहीं मिला था। मैं उसे एक साल से नहीं मिला था, से नहीं, एक साल से, है ना, एक साल से मिला था, तो से what it is indicating, ये कौन सा टेंस है, past perfect continuous। okay, so how you will convert it into English? मैं उसे एक साल से नहीं मिला था, can you convert it in English? I have, I had, है ना, had आएगा यहाँ पे, past है, मिला था। I had not, I had not, okay, मिला था, okay, why I have written this, मिला था, एक साल से नहीं मिला था, I had not met him। ओके 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 ओके, सो मैं उसे एक साल से नहीं मिल रहा था। अगर ये मिल रहा था होता तो वी मस्ट हैव मेड दिस सेंटेंस कि मैं उससे एक साल से नहीं मिल रहा था, तो आई हैड नॉट बीन मीटिंग हिम फॉर 1 ईयर। ओके, आई हैड नॉट बीन मीटिंग हिम, उसे, हिम, फॉर 1 ईयर। ओके, सो अगर अगर ऐसे लिखा है, मैं उसे एक साल से नहीं मिला था, तो व्हाट इट इज, एक साल से नहीं मिला था। अगर सिंपल होता, आई हैड नॉट मेट हिम, हाँ, सिंपली हैड नॉट बीन, मीटिंग नहीं आएगा, आई हैड नॉट मेट हिम फॉर 1 ईयर। समटाइम्स दिस फॉर्म ऑल्सो एग्जिस्ट कि यू आर नॉट यूजिंग रहा था, बट स्टिल अ सेंस ऑफ टाइम इज कमिंग। ओके, so let us look at let us elaborate on all these types. First we'll look at past indefinite tense. So what is the form in Hindi? What is the form in Hindi? था, था, ती, थी, है ना। वह, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या था, ता है, ती है, ते हैं। डू यू रिमेम्बर, ता है, ती है, ते हैं। तो इसमें क्या है, ता था, ती थी, ते थे, है ना। वह वह अपना कार्य सही से करते हैं। कैन यू सी द डिफरेंस बिटवीन दीज टू सेंटेंसेस? वह अपना कार्य सही से करते हैं और वह अपना कार्य सही से करते थे। ओके, यू आर टेलिंग अ थिंग ऑफ पास्ट कि वह अपना कार्य सही से करते थे, सो यू इट इज पास्ट इंडेफिनिट। ओके, या फिर ऐसे भी आ जाते हैं, जैसे या, ये ऐसे भी सेंटेंस एंड होता है, या आ, ई से सेंटेंस एंड होता है। जैसे कि यू कैन लुक एट द एग्जांपल, राधा ने गाना गाया, मैंने खाना खाया, है ना। और मैंने एक कार खरीद, मैंने एक स्कूटर मैंने एक कार खरीदी,
है ना? All these are signatures of past indefinite tense. So what happens in English? What happens in English? Verb की second form, we'll use verb की second form, and then if you are using helping verb, then you will use did, और did के साथ second form नहीं आती, first form of the verb आती है. Okay, so see here structure of the sentence. पहले subject आता है, फिर उसके बाद verb की second form आती है, फिर उसके बाद object आता है. Okay, this is simple affirmative sentence. So what about negative sentences? What about negative sentences? सब्जेक्ट आता है, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है और उसके साथ नॉट आता है. डिड नॉट. हेल्पिंग वर्ब इज व्हाट? डिड नॉट. और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आता है. ओके, इज इट क्लियर द स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव? ओके, so next one, interrogative. How we write interrogative? How we write interrogative? Helping verb is coming at the first. Okay, did पहले आ जाएगा और subject, then comes your subject, then a first form of the verb and then object. Okay, this is interrogative if you want to ask a question. And what about interrogative negative? जिसमें question भी पूछा जाए और नहीं का भी सेंस आए. did पहले आ जाएगा और फिर subject, फिर not, फिर verb की first form plus object. All these rules are same for all the tenses. Okay, you can now observe कि what is happening in every tense. It is happening, right? In affirmative, simply you write a sentence with starting from a subject and which ends on an object, है ना? अफर्मेटिव क्या, सिंपली आप सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हो और ऑब्जेक्ट पे खत्म हो जाता है. और नेगेटिव में बस एक नॉट आ जाता है हेल्पिंग वर्ब के साथ. ओके, और इंटेरोगेटिव में क्या होता है कि जस्ट हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाता है और बाकी सेंटेंस ऐसे ही रह जाता है. ओके, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है, पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर नेगेटिव वर्ड आता है, फिर उसके बाद एज इट इज जो भी रूल है उस टेंस का वो फॉलो हो जाता है. Okay, so all this structure is same, almost same in all the tenses. You can observe it now. So let us look at the examples. Radha ne gana gaya. Radha ne gana gaya. So Radha sang a song. So can you see कि which form of verb it is? Sang, sing, sang, sung. Sang is second form of the verb. Radha sang a song. Okay. मैं इस तालाब में नहीं नहाता था. मैं इस तालाब में नहीं नहाता था. I did not bath in this. I did not bathe in this pond. Okay, so bath, bathe. Bathe is there. Bathe will come here. So I did not bathe in this pond. Okay, second form will come. क्या आप 10 बजे स्टेशन पर पहुंचे? 10 बजे स्टेशन पर पहुंचे. क्या आप 10 बजे स्टेशन पर पहुंचे? Did you reach the station at 10 o'clock? It is interrogative. So did will come at the front. Did you reach the station at 10 o'clock? क्या उसने मुझे नहीं देखा? Did he not see me? है ना, interrogative negative. Did he, helping verb he, फिर उसके बाद not, फिर verb, then your next your further part of the sentence. Did he not see me? Okay, next one, आपने कौन सी किताब खरीदी? तो इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कौन सी किताब. तो which, कौन सी, which book did you buy? So which book did you buy? हेल्पिंग वर्ब भी आएगा, did you buy. जब did आ गया तो bought नहीं आएगा. buy का क्या होता है सेकेंड फॉर्म? bought. buy, bought. So buy comes, if did comes, then by second form of verb does not come. Simply first form is used. So which book did you buy? Okay, so let us do some exercises now to make this tense more clear. पुलिस ने चोर को पकड़ा. Can you convert this sentence into English? पुलिस ने चोर को पकड़ा. And side by side you keep observing. आप देखते रहो कि पास्ट इंडेफिनिट की फॉर्म कैसी होती है. इन सारे एग्जाम्पल से यू विल गेट टू नो
कि पास्ट इंडेफिनिट की फॉर्म ऐसी ऐसी होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, ठीक है ना। पुलिस ने चोर को पकड़ा, द पुलिस कॉट द थीफ, यस, द पुलिस कॉट द थीफ, कैच, कॉट, कॉट, सो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब विल बी यूज्ड, द पुलिस कॉट द थीफ। उसने मुझे कितनी किताब नहीं दी, अपनी किताब नहीं, उसने मुझे अपनी किताब नहीं दी। ये एक बार प्रेजेंटेशन में देख लीजिएगा पीपीटी में। लग रहा है दोबारा रिकरेक्ट करना पड़ेगा क्या? हाँ, सो हाँ, हो गया। ओके, सो वेयर वर वी, उसने मुझे अपनी किताब नहीं दी, सो व्हाट इज इंग्लिश ट्रांसलेट, यू हैव टू ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश। उसने मुझे अपनी किताब नहीं दी, he did not give me his book, yes it is correct, because you are using did, so you will not use second form of verb, okay, क्योंकि did आ रहा है तो gave नहीं आएगा, give, gave, given, okay, give first form, gave second form, given third form, so here you will not use gave, है ना। पास्ट में अगर सिंपल पास्ट होता तो यू सिंपल पास्ट में अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं होता तो यू विल यूज गेव, है ना, बट हियर because you are using helping verb did, so you will not use gave, you will use give, first form of the verb. He did not give me his book, okay. क्या चोर सड़क पर दौड़ा, क्या चोर सड़क पर दौड़ा, did the thief run on the road, correct, yes, this one is correct, okay. तुमने यह सब कैसे किया, तुमने यह सब कैसे किया, इसमें क्वेश्चन पूछ रहे हो, हाउ डिड यू डू ऑल दिस, करेक्ट, दिस इज करेक्ट, हाउ डिड यू डू ऑल दिस, हाउ डिड यू डू ऑल दिस। क्या वह आज स्कूल नहीं गई, क्या वह आज स्कूल नहीं गई, क्या वह आज स्कूल नहीं गई, डिड शी नॉट गो टू स्कूल टुडे, करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। आज वह लड़की कक्षा में क्यों नहीं आई, यू आर आस्किंग क्वेश्चन, है ना, इसमें क्वेश्चन पूछ रहे हो, वाई, क्यों, वाई, आज वह लड़की कक्षा में क्यों नहीं आई, वाई डिड दैट गर्ल नॉट कम इन द क्लास, करेक्ट, यस, टुडे, टुडे भी आएगा, यस, आज, है ना, आज वह लड़की कक्षा में क्यों नहीं आई, वाई डिड दैट गर्ल नॉट कम टू क्लास टुडे, करेक्ट, दैट गर्ल, ओके, वह लड़की, so you are using that girl, can you let us rebound back to our parts of speech, इसमें that girl, what is that here, adjective, okay, that girl, so noun की विशेषता that, demonstrative adjective, so that is adjective here,
तो आज वह लड़का ओके, क्या तुमने उससे कभी बात नहीं की? क्या तुमने उससे कभी बात नहीं की? क्या तुमने उससे कभी बात नहीं की? एवर, कभी। Did you not talk to him ever? Did you not talk to him ever? Did you never talk to him can also come. No, did you never talk to him? Did you never talk to him? I have a suspicion in this. Did you never talk to him? I think whether did you never talk to him can never come here. Did you not talk to him ever? It is absolutely correct. I am sure about that. But did you never talk to him? Okay, so okay, we'll discuss about this more tomorrow. Ki never can come here or not. Okay, so I am just noting this point. Never. Okay. So, but did you not talk to him ever? Okay, it is correct. Did you not talk to him ever is correct. Okay. So, next one. लड़के चिल्लाए. The boys shouted. Yes. लड़के चिल्ला रहे थे. अगर होता लड़के चिल्ला रहे थे, then you can write the boys were shouting. है ना? were shouting ये पास continuous हो जाता है. रहे थे. But here only it is simple past. लड़के चिल्लाए. Simply you will use second form of the verb. The boys shouted. Full stop. उसने तुम्हें क्यों नहीं बुलाया? Why he did not call you? Correct. हाँ, it is correct. क्यों? Why? Why he did not call you? पिताजी कहाँ गए? कहाँ? Where? कहाँ? Where? Where did father go? Correct. Okay. Where did father go? Go went gone. But because did is coming, so we are using first form of the verb. Where did father go? Okay. क्या उसने यह किताब पढ़ी? Did he read this book? क्या उसने यह किताब पढ़ी? इट इज अ सिंपल है ना. आप उसने यह किताब पढ़ी, इसमें जस्ट आप क्या लगा रहे हो? इसमें कोई क्वेश्चन नहीं, जस्ट इस सेंटेंस पे ही क्या जब लग रहा है तो ये सिंपल इंटेरोगेटिव है. तो क्या यू विल यूज जस्ट हेल्पिंग वर्ब. ओके, नॉट समथिंग लाइक व्हाई. ओके, सो डिड ही रीड दिस बुक? यस, करेक्ट. ओके, वह वहां जाना नहीं चाहता था. He did not want to go there. Correct. He did not want to go there. Okay. शीला अभी तक नहीं आई. First one. शीला अभी तक नहीं आई. Sheila didn't come yet. It is correct. Yes. अभी तक yet. Sheila did not come yet. अभी तक. What is the English of अभी तक? Yet. Okay. शीला अभी तक नहीं आई. शीला did not come yet. आज गृह कार्य किसने नहीं किया? आज गृह कार्य किसने नहीं किया? हु है ना. किसने? किसने? हु.
किसने नहीं किया? हु डिड नॉट डू द होमवर्क टुडे? यस, हु डिड नॉट डू द होमवर्क टुडे, करेक्ट। ओके, बंदर पेड़ से कूदा ना। ओके, थर्ड वन वी मिस्ड। क्या तुमने उसे मेरे बारे में नहीं बताया? क्या तुमने उसे मेरे बारे में नहीं बताया? Did you not tell him about me? Did you not tell him about me? Yes, it is correct. बंदर पेड़ से कूदा। बंदर पेड़ से कूदा। पेड़ से, from the tree. The monkey jumped from the tree. Correct. उन्होंने क्या निर्णय लिया? उन्होंने क्या निर्णय लिया? तो ये क्या है? इसमें क्वेश्चन पूछ रहे हो, व्हाट डिड दे डिसाइड? करेक्ट। उन्होंने, व्हाट डिड दे डिसाइड? ओके, मैंने उसे नहीं पहचाना। मैंने उसे नहीं पहचाना। आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम। करेक्ट। क्या उसने मुझे नहीं देखा? क्या उसने मुझे नहीं देखा? डिड ही नॉट सी मी? यस, डिड ही नॉट सी मी, करेक्ट। क्या उसने तुमने वहां क्या देखा? तुमने वहां क्या देखा? व्हाट डिड यू सी देयर? करेक्ट। यह तुमने क्या किया? यह तुमने क्या किया? व्हाट डिड यू डू? व्हाट डिड यू डू? उन्होंने तुमसे बात क्यों नहीं की? उन्होंने तुमसे बात क्यों नहीं की? उन्होंने तुमसे बात क्यों नहीं की? why did why did not they talk to you, या why did they not talk to you? So conversation, you, why didn't the conversation with you? Conversation is a noun, बातचीत. Conversation, it is not a verb, है ना, बातचीत. So अगर आप conversation use कर रहे हो तो आप ऐसे करते हो conversation के साथ के have conversation, having conversation, है ना. So conversation is not used as a verb. So बातचीत के लिए आता है conversation. So simply you will use talk. उन्होंने तुमसे बात क्यों नहीं की? Why did they not talk to you? Simply it will come. Okay. So next one, क्या अभी तक सूरज नहीं निकला? Did the sun not rise yet? Yes, correct. So you are catching, है ना. Did के साथ rise, rose, risen, rise ही आएगा, rose नहीं आएगा, है ना. did जब यूज कर लिया तो रोज नहीं आएगा, rise ही आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी. Did the sun not rise yet? करेक्ट, यस. यह सब किसने किया? यह सब किसने किया? who did who did do all this? Who did do all this? Okay. See, मतलब structure wise, you are writing it correct. Who did do all this, but who did do all this will not come. Who did all this? Who did all this is correct.
Okay. Okay. Okay, so I think this much is that we should stop the class now, and further we'll do in the next lecture tomorrow. So if you have any doubt till here, so you can ask. Hello, are you able to get all these tenses? Hello. हाँ, आपकी आवाज सुनाई पड़ रही है। आप लोगों को जो पूछना है पूछ सकते हैं। If you have any doubt, you can ask.